So recently we celebrated Science Day, and we all know Science Day is celebrated in the memory of Sir C.V. Raman, and he got the Nobel Prize in physics due to the discovery of Raman effect in 1930. But only few of us really understand what Raman effect is. So today we will be touching on Raman effect on a surface level. So before going into Raman effect, let's talk about scattering of light. Scattering of light, you all must be knowing that deviation of light from its original path is known as scattering of light, and scattering of light is of two types. The first one being the normal scattering, that is also called relay scattering. The second one is the important one, which we are going to study today, is known as Raman scattering. Before I tell you the types of scattering, let me tell you the applications of scattering of light. There is a very famous question in science: why is the color of the sky is blue? We all know the answer is scattering of light. Why during the sunrise and sunset the sun becomes red? Due to scattering of light. So scattering of light has a wide range of applications. Now let's talk about the types. The first type is relay scattering. The second type is Raman scattering. What happens in relay scattering is, let's say we take a molecule first. एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया, इसको M नाम दे दिया हमने, M नाम का हमने मॉलिक्यूल दे दिया. हम इस पे लाइट गिरा रहे हैं हम न्यू फ्रीक्वेंसी की, या मैं यूं कहूं लैम्डा वेवलेंथ की. तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा. ओके, ये तो हो गया हमारा इंसिडेंट फोटोन. स्कैटरिंग में हमारे पास दूसरी चीज क्या होगी? मॉलिक्यूल में डेविएट होने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा हमको? स्कैटर्ड फोटोन. So what happens in relay scattering is the energy of incident photon and the energy of scattered photon is same. यानी कि इसकी एनर्जी भी कितनी होगी? h न्यू. अगर इनकी एनर्जी सेम है तो इन दोनों की वेवलेंथ भी सेम होगी. So what happens in relay scattering is the wavelength of the incident photon is same as the wavelength of the scattered photon. And this type of scattering, या this type of collision is also called elastic collision. Okay, this was all about relay scattering. Now let's talk about Raman scattering. Raman scattering में क्या होता है? जो incident photon का energy है is not equal to the energy of the scattered photon. The energy of incident photon is not equal to the energy of scattered photon. Now what happens in this is, let's take a same molecule M. इस पे जब हम incident photon गिरा रहे हैं, incident photon जिसकी एनर्जी है h न्यू, इस पे जब हमें इस मॉलिक्यूल पे एनर्जी जब हम गिरा रहे हैं तो दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं. पहली चीज, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ जाए. दूसरी चीज, जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी घट जाए. जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तब हम उसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग. जब स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी घट जाती है उसको हम बोलते हैं स्टोक्स स्कैटरिंग. Now let's talk about the reason why the energy is increasing and why energy is decreasing. Now जैसा कि हमें पता है एक मॉलिक्यूल है तो इसके पास रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज होंगी. तो जब एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग की बात करते हैं, एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में क्या हो रहा है? इंसिडेंट फोटोन आया इसके पास, जो मॉलिक्यूल की रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी है वो घट गई, और जो घटी हुई एनर्जी है, वो जो डिफरेंस है, वो हमें देखने को मिलता है स्टोक्स स्कैटरिंग. मॉलिक्यूल की एनर्जी घट गई, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ गई. व्हाट हैपेंस इन स्टोक्स स्कैटरिंग? इसमें मॉलिक्यूल, जो इंसिडेंट फोटोन है वो अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे दे रहा है. मॉलिक्यूल की रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जा रही है, और जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो घट जा रही है. आप समझे? तो यही जो पूरा फिनोमेना है इंसिडेंट फोटोन के एनर्जी का बढ़ना या घटना, या यूं कहें उसकी
वेवलेंथ का बढ़ना या घटना, इसी पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट। और जो ये शिफ्ट आता है इन दोनों की एनर्जी के बीच में, इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी के बीच में जो शिफ्ट आता है उसको हम बोलते हैं रमन शिफ्ट। Now let's talk about why this discovery was very important. This discovery was so important that it got Nobel Prize because ये जो रमन शिफ्ट है इसकी वजह से आप जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में पता लगा सकते हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कैसी है, उसका काइनेमेटिक्स कैसा है। आजकल की वन ऑफ द बेस्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी इस फिनोमेना पे ही डिपेंड करती है। जो रिनाउंड हमारे साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या उसकी काइनेमेटिक्स को जानने के लिए इस ही चीज का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। So this whole phenomena is known as Raman effect. Hope you understood it. Thank you.